প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, হ্যালো ইন্ডিয়া বাংলা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমার পেছনেই দেখতে পাচ্ছেন দুর্গাপুর ইস্পাত কলোনির 8-35 চণ্ডীদাস এই কোয়ার্টারে চাইয়া বাবা, উনি এখন এখানেই আছেন। ওনার বয়স 200 বছরের উপরে এবং 5 বছর উনি জ্ঞানগঞ্জে ছিলেন। তো আজকে আমি এই চাইয়া বাবার উপরে একটি প্রতিবেদন আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যদি আমার প্রতিবেদনটি আপনাদের ভালো লাগে আপনারা লাইক দেবেন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, হ্যালো ইন্ডিয়া বাংলা চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর নোটিফিকেশনের জন্য বেল আইকন টিপবেন। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধু চাইয়া বাবা এখন শিল্প শহর দুর্গাপুরে। তিনি দিব্যদৃষ্টি অধিকারী একজন উচ্চমার্গের সাধু মহাত্মা। ভক্তদের মুখ থেকে শোনা গেল তার বয়স সম্ভবত 200 বছরেরও অধিক হবে, কিন্তু একেবারেই প্রচার বিমুখ। আজ পর্যন্ত শত চেষ্টা করেও কোনো প্রচার মাধ্যম তার সাক্ষাৎকার নিতে পারেনি। জানা গেল তিনি জ্ঞানগঞ্জে প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে 5 বছর কঠোর সাধনা করেছেন। তার আসল নিবাস সান্ডিয়াঘাট নর্মদা তীরে। বরফের মধ্যে প্রচণ্ড ঠান্ডায় তার পায়ের পাতাগুলি বক্র আকৃতি ধারণ করেছে। চাইয়া বাবা নামে তিনি অধিক পরিচিত হলেও তার আসল নাম ঋষি কুমার। চাইয়া বাবার মুখ থেকেই শুনবেন তার কথা। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই তার বয়স 200 বছরের উপরে। চোখে তার নীল আকাশের গভীরতা, যেন সবসময় সাধনায় মগ্ন। तो माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता पटेल है। बाबा जी के साथ रहते हैं आप? हाँ, मैं बाबा जी के साथ आना जाना रहता है मेरा। घर में भी हूँ, मैं घर में भी रहती हूँ। बाबा जी घर कहाँ है आपका? गड़ा घाट में है, ग्राम गड़ा घाट में, सांडिया से 6 किलोमीटर है मेरा। अच्छा, तो बाबा जी के बारे में कुछ बताइए ना। आप तो उनका साथ बहुत साल बिताया है। हाँ हाँ, मैंने 2013 से मैं महाराज जी के पास जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। जिसका जो रहता है महाराज जी कष्ट दूर करते हैं। अच्छा, हमारे गुरुजी कष्ट दूर करते हैं। अच्छा, 200 साल का ऊपर उनका उम्र है? हाँ, उम्र है। और बाकी मतलब जो भक्तगण उनसे जुड़े हैं वो बहुत प्रेमी हैं। उनके अच्छा। जो भक्तगण है बहुत प्रेमी हैं और आते रहते हैं। अच्छा, इन्होंने बाबा कहीं जाता नहीं है, भूमि को छोड़ के कहीं नहीं। बाबा जी शिव का भक्त है? शिव भक्त है। और मतलब इन्होंने इतना अनुरोध किया कि हमारे यहाँ आना है तो आए हैं, नहीं तो बाबा कभी भूमि नहीं छोड़ता है। আপনাদের নামটা বলুন। আমার নাম চৈতালি ব্যানার্জি। আমার নাম রানু চ্যাটার্জি। আচ্ছা, তো এই বাবাজি সম্পর্কে 2-4 কথা একটুখানি বলেন। বাবাজি প্রথমে আমি ওই সন্দীপ ভাইয়া সন্দীপ ভাইয়ার সঙ্গে গেছিলাম। সন্দীপ ভাইয়া নিয়ে গেছিলাম। আমাদের একটা প্রবলেম হয়েছিল, বলেছিলেন যে নর্মদায় এরকম বাবা আছে, আপনি চলুন, সব আপনার প্রবলেম সলভ হবে। তারপরে ওখানে গেলাম, ছোট্ট কুঠিয়ার মধ্যে ছিলাম সবাই মিলে। এবং যে কোথায় গেলেন? ওই নর্মদাতে? নর্মদা গেছি, সান্ডিয়াঘাট বাবা থাকেন। সান্ডিয়াঘাট। আচ্ছা, তো ওখানে গিয়ে যে প্রবলেম ছিল উনি সব সলভ করে দিয়েছে, একদম সব কিছু হয়ে গেছে। তারপরে বাবা বললেন যে আমরা নর্মদা পরিক্রমা করব। তো পরিক্রমা বাবার সাথে আমি নর্মদা পরিক্রমা করে এসেছি। ওখানে 1 মাস 2 মাস থেকেছি। আবার এই যে চোতে নবরাত্রি হয়, আমি গেছিলাম, ওখানে ছিলাম 1 মাস। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। মা সামনে বলছে। এই যে বলছেন ওনার বয়স 200 বছরের উপরে, এ ব্যাপারে আপনার কি বক্তব্য? ওখানকার যারা লোকজন, তাদের দাদু চাচা, আবার এই বাবাকে নিয়ে আমি গেছিলাম আসাম কামাখ্যা। সেখানে মন্দিরের পাশে একটা দোকান ছিল কফি। তো উনি যার নাম বললেন তিনি হলো ওই যে বানাচ্ছে কফি, ওনার দাদাজি। बाबा जी साहब बोल रहा है कि आपका उम्र 200 साल का ऊपर है, तो एक्चुअल क्या उम्र है आपका? अब हमारे तो उम्र का तो कोई पता ही नहीं। अच्छा, 200 साल का ऊपर होगा आपका उम्र? ये तो हम नहीं जानते हैं, बाकी हम इससे तो उम्र का तो अनुभव हम नहीं रखा। आपका हिसाब से बोलिए, आपका हिसाब से। मैं तो नहीं जानता। 200 साल का ऊपर है आपका उम्र? कोई बोल रहा है कि 250 ईयर्स है आपका। देखिए, तो उम्र को तो हमें पता नहीं। अच्छा, बाकी हम बहुत समय से ही हैं।
हम 70-80 साल तो हमने खाली मैहर में थे। कितना साल? 70-80 साल, जहाँ कोई रास्ता नहीं था मैहर को, और पूरा भारत भ्रमण करे नंगे पैर। अच्छा। हाँ, यहाँ भी आए थे, सुभाष चंद्र से पहले आए थे, सुभाष चंद्र के बाद में हम आए थे। सर जी की पूजा करता हूँ, नर्मदा क्षेत्र से जाता नहीं कहीं, और यज्ञ करते रहते हैं। हमारा यज्ञ कभी लॉकडाउन में नहीं बंद हुआ। अच्छा, आपका जो भक्तगण है जो बोल रहा है कि आपका उम्र 200 साल की है, ऊपर है 200 साल की, तो ये सही है? आप क्या बोलते हैं? ये सही है, बिल्कुल सही है। इनके जता ना एक पॉइंट घटता है। आपके सर के बाल बूढ़े हो जाए, सुनो, आपके बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे ना, तब भी मैं तुम्हारे आपको ऐसे ही मिलूंगा। मैं इतनी छोटी, आपके नहीं, आपके बच्चे के पैदा होने वाले की मैं अब सोच लो। अच्छा। हाँ, अच्छा, देखिए, बंद करके देखिए, मनुष्य का जो जीवन है बहुत संकटपूर्ण है, तो कैसे सुख शांति कैसे मिले मनुष्य को? उसके लक्ष्य अनेक प्रकार के हैं। अच्छा, बताइए। वो कभी मोह नहीं रखता, न निंद्रा, न भूख से, न प्यास से, वो जीवन सदा सुखी जीवन जीता, जो भगवान के एक आधार पे रहता है। एक आधार बोलते हैं? एक आधार, जिसका अधीन है उसी का अधीन परमात्मा एक इष्टो। अच्छा। चाहे शिव का इष्ट है, चाहे विष्णु का है, चाहे दुर्गा का है, चाहे माता पिता का है, चाहे भूमि का है, चाहे जल का है, चाहे पृथ्वी का है, मानना उसको एक इष्ट है। अपने कार्य में लगा रही, पूरा ध्यान ज्ञान इष्टों का ऊपर रहना चाहिए। हाँ हाँ। अच्छा, तब शांति मिल सकता है। तब शांति मिल सकता है। अपने मन को समाधि स्थल में लगा करके, जैसे जल, एक जल बहता हुआ है आवाज देता है, दूसरा जल में बहता रहता है आवाज नहीं देता है, तीसरा जल समाधि रूप में रहता है जो तालाब का होता है। वो तालाब का भी जल कभी हवा आने पर उछलता है, बाकी कोई जल ऐसा है जो थरथर रहता है, आंधी तूफान तो कभी हिलता नहीं। अच्छा बाबा जी, आप मैंने क्या खाते पीते हैं आप? अब खाने पीने की कभी मेरे पास रहिए 1-8 साल तो फिर पता लगे। पाँव में पाँच बांध के रहिए मेरे 1 साल। अच्छा। मेरे सोने को, जागने को, पूजन को सब आपको पता लगेगा। नहीं, हमको तो पता नहीं। आप अच्छा माता जी आप बोलिए। मेरे सामने मतलब महाराज जी रहते हैं, तो भूख का तो उनका कोई वो नहीं है, कहाँ से उनके पास आ जाए, कैसे आ जाए, कैसे वो पाले, हमको कोई पता नहीं रहता। कोई पता नहीं? कोई पता नहीं। कोई का नहीं ना, तेरे को पता होता है किसी को, तेरे को पता नहीं। भोग लगाते हैं लेकिन हमको पता नहीं रहता। तेरे को भी पता नहीं रहेगा इस बात को। और उसके बाद सोते कभी है नहीं है वो, जब भी कभी रात में 24 घंटा मेरे पास तबीर करो, मेरे पाँव में पाँव बांध के 1 साल तो रो। कभी नहीं सोते। हमने आसाराम बाबू की बात तो कही, पाँव में पाँव बांध के 1 साल तो रही। सोते नहीं है? अब उसकी छोड़, 1-8 साल मेरे पाँव में पाँव बांध के रही है। जीवन में सब है, वो मेरा सब संतान है। ब्रज भी मेरा है, पृथ्वी मेरी, कोई दुराचार से, कोई गाली दे के पुकारता वो भी मेरी संतान। जिस प्रकार से मनुष्य माँ के 5 पुत्र होता है, कोई डाका डालता है। अच्छा बाबा जी, आपका पूरा नाम क्या है? हमारा? हाँ, हमारा नाम लालदास महाराज है। लालदास महाराज। अच्छा। हम तो बड़ा बहुत बचपन से इतने बड़े सामने साधु के गोद पे पले। अच्छा, आपका गुरु जी का नाम क्या है? रोटीदास। तो शांत हो गए, बहुत समय हो गया। अच्छा बाबा जी, ज्ञानगंज के बारे में कुछ आप बोल सकते हैं? के बारे में हम रहे 5 साल। बाल से हवा लेते हैं, बाल से लैटरिंग होती है, बाल सब कुछ होता है। आप उधर थे 5 साल? 5 साल अंदर ज्ञानगंज में। ये सब वही पाँव खराब हुए, और नंगे पैर भारत में पूरे रहे, ये सब बर्फ में खराब हुए। अच्छा। ये देखिए, कान में भी बर्फ में खराब हुई, ये कान। और कुछ बताइए ज्ञानगंज के बारे में। अब फिर और बताएंगे, भी पूजन का टाइम है, आप आना कोई नहीं। हम लोग जा सकते हैं ज्ञानगंज में? अच्छा, आपको कैसे क्या करना चाहिए कि? वहाँ तो समाधि पुरुष ही जा सकता है। समाधि? सब संत भी नहीं जा सकते। जो अपने वो जो बोलता है सुख खो देहो, सुख खो देहो जो बोलता है ना। हाँ, तो सब चीज को त्यागना पड़ेगा, माँ मोह परिवार को सबको त्याग के उसके लीन में जब आओगे, ईश्वर के जब लीन में हो जाओगे तो ज्ञानगंज नहीं परमात्मा के लीन में हो जाओगे। अच्छा, तो 5 साल आप उधर थे, ज्ञानगंज में थे? 5 साल अंदर थे, गुफा में। गुफा के अंदर जो
बर्फ का गुफा रहता उसके अंदर थे। अच्छा, बर्फ अभी जो है आपका मकसद क्या है? अब हाँ? अब तो भाई तपस्या से परपन है। अब तो बस मकसद हमारा वही है पूजन का। हमारा शिव जी डेली बनते हैं और धुनी पे पंडित जी बनाते हैं। अच्छा, तपोभूमि है उस पे जहाँ कृष्ण भगवान ने दीक्षा ली वही हमारी अच्छा जी है। सांडिया रसो संगाबाद मध्य प्रदेश, सांडलसी तपोभूमि अंजना संगम, और उस भूमि पे आज तक कोई नहीं रह पाया। उस क्षेत्र में आइए। और साधना के बारे में आज और कुछ बताइए। और साधना के बारे में तो साधने हैं, रात्रि में साधना करते हैं। साधने के युग में तो चाहे बाजार हो चाहे मेला हुए, समाधि लगने वाला जो संत पुरुष है उसके लिए न हल्ला है न मेला है न आवाज है न चीख है, जो समाधि में लीन होता है। दुनिया का विनाश होगा, तो इसके बारे में आप कुछ ये बताइए। राजा कलयुग है, कलयुग का प्रचार है। और कुल की देव के बारे में आपका क्या राय है? कुल की देव नहीं, कुल का देव तो हमारा सुरक्षित रहेगा। बोलता है ना ये कुल की देव आके सब कुछ ठीक कर देगा। अब देखिए, तो परमात्मा की जो शक्ति होगी, शक्ति जब तक अवतार नहीं ले जब तक कुल नहीं ठीक होगा। दुनिया में देखिए हिंसा बढ़ गया है, वो घर घर हिंसा है, भाई भाई में हिंसा है। क्या आपका ये महाभारत पहले हुआ, वही महाभारत अब आने वाला है। अच्छा, देख लेना। पहली बार है तो आपको इतना कुछ जानकारी उन्होंने दे दिया। कभी कोई कुछ नहीं रहता उनका। अच्छा, ऐसा अच्छा। है, कुछ है ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। तो पहली बार हुआ है ऐसा कि आप मतलब मीडिया के माध्यम से आए हैं और कृपा करके उन्होंने आपको जानकारी दी है। उनकी जानकारी का किसी को कुछ नहीं मालूम रहता। हम लोग वहीं के हैं, सांडिया से 6 किलोमीटर है मेरा गांव। तो मतलब मेरी आकस्मिक तबीयत खराब इतनी हुई थी कि मेरी मतलब बचने की उम्मीद नहीं थी। ये मानो 10th क्लास से तो मेरी पढ़ाई खराब हो गई थी। उसके बाद गुरुजी से मेरी बुआ ने मिलवाया। वो खुद बुआ नहीं मानती हैं, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया था कि अगर इसको कोई ठीक कर सकता है तो बाबा है, नहीं तो कहीं ठीक ही नहीं हो सकती है। इतना मान के विश्वास से कह दीजिए। उसी दिन से मैं ठीक हुई हूँ। मेरा परिवार, मेरा घर और मैं मतलब तन मन से बहुत सेवा करते हैं, बहुत मानते हैं उनको। प्रूफ है ये, मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मैं खुद उनका प्रूफ हूँ ये। সাক্ষাৎকার নেওয়ার পরে কোয়ার্টারের ভিতরে গিয়ে একটি শয্যায় বসে সব ভক্তজনকে নিজে হাতে চা পরিবেশন করলেন বাবাজি। বাদ গেলাম না আমিও। इधर देखिए ना, इधर देखिए। बस तो आप सुबह उठ के चाय पीते हैं ना? चाय पीते हैं तो पूजा हवन शिव, और उसके बाद पूजा के बाद हाँ। चाय पीते हैं। कॉफी। जब तक पूजा नहीं करे तब तक कॉफी नहीं ले। और दोपहर को क्या आहार क्या करते हैं? उसको हमारा कोई ठिकाना नहीं रहता है। अच्छा। इसका कोई मतलब नहीं। जो मिले वही खाते हैं। नहीं मिला नहीं, इससे कोई जरूरत नहीं। मिला भी तो हमारे पास सब कुछ, बाकी नहीं खाते। अच्छा, आज तो बहुत दान रहते हैं, हमारे पास भी सामान रहता है। हवन की वीडियो बता दो। हवन पूजन की हाँ पूरी डाल दो। उसको भगवान शिव की सेवा बताते हैं। और जो मेरा आशीर्वाद है, अगर सच्चे जन्म सच्चे मन से आता है तो मेरे शिव को आशीर्वाद को लगता है। और ऐसा है, अगर बुरे मन से आता तो अगर भगवान का द्रोही है, शिव का अगर द्रोही है या परमात्मा का अगर जन्म बहुत ही द्रोही है, तो जीवन में सबसे प्रथम भक्ति है माता पिता से बढ़ के कोई भक्ति नहीं है। और जो संत हैं उनके गुरु के चरणों में, जो गुरु है, गुरु से भक्त संसार में उनसे कोई बड़ा नहीं, और माता पिता की भक्ति से कोई संसार में बड़ा नहीं। और फिर शिव से बड़ा पृथ्वी में कोई आकार बड़ा नहीं है। शिव स्वयं आकाश है। ब्रह्मा से रटने वाले हैं,
विष्णु जगत के पालन करते हैं। विष्णु तुम भी जगत के कल्याणकारी है। आदि शक्ति है, माता जगत जननी के जन्म देने वाली। इस प्रकार से हम तो भाई पहले इधर निकले नहीं, हम तो पहले कहीं निकलते नहीं थे। आज हम जिस गांव में रहे ना, अभी उस गांव में पूछना तो उस गांव में पाँव नहीं रखेंगे। 50 साल हो गए। अच्छा, आज जहाँ मेरी कुटी वहाँ कोई रहता नहीं। क्या सांडिया दूर है 2 किलोमीटर। क्या नाम है गांव का? सांडिया। सांडिया। हाँ। 50 साल आप नहीं गया है उधर? नहीं गए, पूछ लेना वहाँ। अभी तक गाँव में आज भी नहीं गए गाँव में वो। आज भी हमारा जब होता है यहाँ से, लेकिन जब वो हमारे लॉकडाउन में हुआ, बंद नहीं हुआ। पूरा शासन ने मेरा काम करो जग में। अच्छा, चंडी एक होता है चैत हर साल में, होता है चैत के नवरात्र में, अकेले करवाते हैं। अकेले करवाते हैं। सांडिया नहीं गए, ये तो संदीप ने मेरे को लाया यहाँ। ये सोचो। ইনি শাণ্ডিল্য মুনির তপভূমি স্থানে উনি অবস্থান করেন। উনার কুটির আছে নর্মদা তীরে অবস্থিত। ইনি খুব প্রাচীন মহাত্মাজি, তবে খুব প্রাচীন এবং খুব সিদ্ধায় মহাত্মাজি ইনি। মনে এক মুঠো শান্তি আর সুখের আশায় আপনারাও আসতে পারেন দুর্গাপুরে। চাইয়া বাবার সাথে করতে পারেন সাক্ষাৎ, হয়তো পেতে পারেন অমূল্য রতন।